These are some of the pictures of Silisha. चलो अभी concentrate हाँ all pictures of malnourishment and rickets etc. So you see bow legs, distended a pot belly, huh? Knock knees. Hmm? This is very, I don't know वो दूर से दिख रहा क्या नहीं है. You can see skin एकदम खराब है इसका. दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्रैक है. I don't know whether you can see it from there. There's cracks. एकदम dirty skin है. There is what hernia. हाँ umbilical hernia. ये सब very typical of Silisha. Scoliosis or kyphosis, bone affections. This is pigeon chest, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आता है, ये देखो इधर जैसे, है ना? Like osteophytes, है ना? Like that, pigeon chest. हाँ, this is the craniotabes, हाँ, softening of skull on suture lines. देखो redness है इधर, on pressure. Profile. See एकदम कैसा पस है इधर, nail bed is infected. All this is also vaccination. ये these are profiles. So irritability, profuse sweating while asleep, hypotonia, frequent respiratory infection, failure to thrive, fits and tetany. Okay, fits and tetany is also one condition which Silisha patients can develop because of malnutrition. Delayed walking, frontal bossing. बाकी सब rickets है. So Silisha, one is nutrition, that is what we learned up till now. There is one more causative factor, that is the emotional factor or the mental factor. That is ailments from fright. What kind of fright? What kind of fright? Huh? Fright of. The main word for Silisha fright is fear of not being able to fulfill expectations. Fear of expectation. From others. So like, doctor, I stood first in class. So my teacher now expects that I should always stand first. My God, क्या होगा? My God, कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, मेरे से तो हो नहीं रहा, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा. I am incapable. They always doubt their capability or their ability. They lack confidence. That is where their complaints start. Or the other two factors that we already learned, that is because of new places, unknown places, or adverse circumstances where they have not had proper food and where they have had to exert, keep on working in spite of very less resources. One more thing is looks or youthfulness. जब उनको ऐसा दिखता है कि यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, ऐसा सब हो रहा है, so then they are very anxious.
So other remedy for this is, Baraita cough. You know, when a patient comes, no, first thing is you observe their first behavior. Baraita cough, मेरे को याद है एक पेशेंट ही हैड हेयर फॉल, कुछ बाहर से आया था, आउट ऑफ कंट्री. बाहर से आए मतलब अपना इमेज अच्छा रहता है ना, मतलब ये अच्छा रहेगा ये. तो क्या आया ऐसे, तो मैं अपना आई वांटेड टू बी गुड, नो, अपने को भी अच्छा दिखना है. तो वो पेशेंट आया अंदर, मैं शांति बैठा है, स्टार्ट स्ट्रेट, देखते ही लेट हिम से समथिंग, देन आई बैठा, उसको उसको समझा, उसने ऐसा देखा मेरे को, उसने देखा इधर देख, क्या है, that was his first expression. Yeah. What I expected, he will come, he will sit and hello doctor, this is my problem. No, he came in, he sat down, he saw that I have not started anything. I just kept silent. है ना, देखते क्या होगा, क्या है, मतलब नहीं, what you are thinking? That is first question he asked. What are you thinking? नहीं, कुछ नहीं. नहीं तो फिर चालू करो ना. So he was very very, what you say, shy, awkward, embarrassed. अरे कुछ पूछा नहीं मेरे को, कुछ बोला नहीं, क्या चल रहा है ये, हाँ? This is very typical of Cilicia or Baraita coughs. Very. ये shyness से या shyness पकड़ा जाए या और पकड़ा जाए? Generally, what I do is I don't conclude from this. I only see it as in a particular spectrum, है ना? ये shy हो सकता है, timid हो सकता है, reserved हो सकता है, उस type का कुछ है, उतना ही देखता हूँ वो stage पे. By the end of the case, you know whether it is more of shyness or reserved nature. बराबर ना? Or it is embarrassment or whatever it is. So at that point, I see it only as वो area का कहीं कुछ तो है. So this is first thing, Celica, what you see is they are very self-conscious. बहुत conscious हो जाते हैं आपके presence में. अरे लोग मेरे को देख रहे हैं, लोग मेरे को सुन रहे हैं, अब क्या होगा? So they want to be very good looking, first thing. If their looks get affected in any way, if their dress is not proper in any way, they will be very concerned. अगर गलती से उसका कुछ कपड़ा खराब हो गया आते समय, किसी ने क्या मिट्टी डाल दिया, किसी ने इस्त्री खराब किया, वो आपको दिखेगा. वो बैठ के ना पहला शर्ट ऐसा करने का, हाँ, फिर स्ट्रेट बैठने का, आराम से बैठने का, ऐसे सब. That is what you will observe first things about Cilicia. Come, sits. Many times, this case did not receive Cilicia. Huh? Why? Because many times what will happen is they are very conscious of their manners also. आपका मैनरिज्म के हिसाब से भी आप इंप्रेशन बनाते हो ना सामने वाले की. फर्स्ट इज लुक्स एंड योर क्लोथ्स, देन व्हाट यू टॉक एंड हाउ यू टॉक. वंस यू हैव सैट डाउन, वंस यू हैव कपड़ा ठीक है, बॉडी पोस्चर ठीक है, सब ठीक है, तो अभी बात करना है. सो दे विल ग्रीट यू, दे विल टॉक विथ यू वेरी नाइसली. हेलो डॉक्टर, इज इट द राइट टाइम टू टॉक विथ यू? क्या अभी मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आपने मेरे को अपॉइंटमेंट दिया. ऐसा वो एकदम यू विल फील दैट फॉर्मल दिस, आपको लगेगा अच्छा पेशेंट मिला. मतलब सल्फर भी ऐसा ही करता है क्या? सल्फर पेशेंट भी नहीं करेगा कभी ऐसा. सल्फर इज इनडिफरेंट टू लुक्स, नो. रैग्ड फिलोसोफर, वो प्लीज करने का सामने वाले को प्लीज करने की कोशिश. सल्फर, one is first
the more important thing in sulfur is they feel that they are the most intelligent people. So doctor cannot be more intelligent for than them, no? आपको अगर याद होगा वो एंटिम क्रूड का केस याद है आपको? what she did, पहले आई वो बोलती है कि वो मेरे को डॉक्टर मेरे को एलर्जिक कोल्ड है, उसके लिए मैं वो एंटी हिस्टामिन्स लेने पड़ते हैं इसमें, और फिर वो एंटी हिस्टामिन अगर फेल हो जाता है तो ये लेना पड़ता है, पर ये सब लेके कुछ फायदा नहीं हुआ, उसके लिए आपके पास आई। अभी देखो आपको जमता है तो आप करो। So what you see here is, one is they are very sure, she is very sure कि वो मेरे को ज्ञान दे रही है, पहला तो कि ये एलर्जिक कंडीशन है। उसने मेरे को ये नहीं बोला कि मेरे को सर्दी हो रहा है, मेरे को बहुत इचिंग होता है आंखों में। This is not her first narration. Her first narration is her diagnosis. She is telling you that I have allergic rhinitis. For allergic rhinitis you have to take anti-allergen. You have to, ऐसा बोलती है वो, ऐसा भी नहीं मेरे को वो डॉक्टर ने दिया, वो सही है, यही करना रहता है, वो मैंने किया, ऐसा बात कर रही है ना वो। You have to see the manner of the talk. This is right, I did this, this didn't work, then they say this has to be done, I did that also. उसमें आप सवाल करोगे ना कि आपने एंटी एलर्जिक बहुत दिन लिया, उतना लेना पड़ता है, ऐसा बोलेगा सर। इसके आगे पूछ मत, तुझको मालूम नहीं है ये एलोपैथी है, तू होम्योपैथ का काम कर, ऐसा वो ये रहता है, टोन रहता है। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है। लास्ट में जब उसने मेरे से मांगा कि चलो आप दवा दो, तभी भी उसने क्या बोला, आप कोशिश कर लो, जमता है तो देखो। वेरी हाई ईगो, वो फर्स्ट फील आएगा आपको कि दिस इज अ इगोइस्टिक पर्सन। आपका ईगो हर्ट होता है ना, ऐसा बोलेगा कोई तो, हे करायला लागतं, ते करायला लागतं, असं असतं तसंच असतं, आणि मी डॉक्टर आहे का तू है ना, दैट इज इगोटिज्म। जब वो फील आता है ना, मी डॉक्टर है का तू है, मतलब ये इगोइस्टिक रेमेडी या पर्सन। सिलिका में क्या हो रहा है, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया वो उसको समझा नहीं, इधर और ऐसा चालू करो ना, है ना, he just wanted to get on with things. So one is he is not also very, ऐसा नहीं है कि अभी मेरे को मालूम नहीं है, अभी मैं क्या करूं, उसको ऐसा लग रहा है इसने ये करना चाहिए, इसने ये कर देना चाहिए। सिलिका रहेगा तो वो सोचेगा अरे डॉक्टर कुछ बात नहीं कर रहा, तो क्या मालूम क्या है, बैठता हूं मैं भी शाम, मेरे को क्या मालूम क्या करने का रहता है, मैं उनके क्लिनिक में आया ना, ये उनका चेंबर, उनका प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं करेगा। दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट ही नहीं करेगा ना, द प्रॉब्लम इज स्टार्टर ही मारेगा नहीं, वो जाने दे, शांत। और अगर उसने स्टार्टर मारा भी, इट विल बी वेरी वेरी वेल मैनर्ड। डॉक्टर, हाउ आर यू, व्हाट इज हैपनिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉइंटमेंट, लास्ट मंथ में आपने दिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। तो मुझको मेरे कुछ कंप्लेंट्स बताने, बताओ क्या आपको, हाँ बताओ, ऐसा एकदम वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर टॉक। समझ रहे आपको डिफरेंस, ईगोटिज्म एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सल्फर वाज फुल ऑन था वो। मैं और शांत बैठे तो अरे क्या गधे पूछना, मालूम है क्या नहीं, है ना, उसको भी कम नहीं करेगा। ऑलरेडी उसने बोल दिया मेरे को गधा, भले उसने वर्ड यूज नहीं किया। यस और नो? उनको सब ऐसे ही लिखते हैं। तुला काय माहिती, मी सांगतो तुला, ऐकून घे, मग पुढचं बघ काय करायचं ते।
मला शिकू नको, हे खूप सल्फरचं महत्वाचं. हे मला शिकू नको, मला शिकवायचं नाही, अँटी एलर्जिक नाही घ्यायचं. कोणी सांगितलं तुला? हाँ, तो वो काउंसलिंग भी उसके ऊपर डिपेंडेंट. सल्फर को कभी नहीं बोलने का एंटी एलर्जिक मत ले. सल्फर को काउंसलिंग अलग तरीके से करने का की बघ ऐसे असं असतं, इम्युन सिस्टीम इफेक्टेड आहे तुझं, तर त्याच्यासाठी आपण हे असं असं केलं पाहिजे, हे केलं तर हे बरं होईल. पण ते ह्याला हे औषध हॅम्पर करतं. अच्छा असं असतं का, मग ठीक आहे ना, सोडून देऊ. उसको कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए. सल्फर वो कंसेप्चुअल आदमी है, ही इज अ फिलोसोफर, ही इज अ कंसेप्चुअल पर्सन. उसको ये नहीं बोलने चाहिए मैं ये बोल रहा हूं तुम करो, गए. मी सांगते ना तुम्हाला करा, तुम्ही काय करणार, तुम्हाला काय कळतंय? है ना, वो है. उसको कभी ईगो का टॉक करने का ही नहीं, कॉन्सेप्ट टॉक करने का, तो वो सुनता है बराबर. पल्सटीला को सिलिशिया को बोलने का, मी सांगतोय ना कर, ठीक है डॉक्टर फरक नाही पडला हो ते औषधाने. पडलाय हो डॉक्टर, वाटतंय जरा कमी आहे. That is lack of confidence.